Good morning everybody present here in the campus of Harvard Vidyapeeth, Chhapra. Friends, today we are assembled here for an in-house training conducted by the COE of CBSE, Patna. And the topic is very interesting and hope all of you will enjoy the topic. The topic is towards you on the screen. Ideas for a calm and happy classroom management. Actually, the era in which we are living is the era of stress, era of tension, era of responsibilities, and era of a lot of burdens. Human nature always needs coolness, calmness, relaxation to get a proper result in his works. But nowadays, even a single child or reading class 3 or 4 also getting a stress regarding syllabus, his teacher and his school orders, as well as the teachers, especially when you talk about the academic field. The problem is common for all fields nowadays. But today we will talk only about the classroom and the school system only because we have teachers sitting here. All of you know that happiness is a word, and it is always said happiness is not a word, but it is a medicine. The people who becomes happy, the people who becomes cool, calm, composed and satisfied, he becomes always a good and properly lovable by all. So happiness is an art. Be happy and make others happy. This is a very, very important and respectable and valuable art. I hope you will enjoy this session with full happiness, and I will try my best to make a smile on your face during the session. Friends, I would like to ask any of my friends, and definitely I would like that anyone, minimum 5 my friends reply, what is happiness according to you? How you consider that happiness is? What is happiness? What do you think? What is your opinion about the happiness? What is happiness? When you feel happy, or I would like to ask, any friend kindly share any happy moment of your life? When you have felt, yes, I am happy today. What is happiness? According to you, I would like to ask any one of my friends kindly explain. All of you are welcome here. Yes, sir, please. Yes, come here. On the last sir, please. Thank you, sir. When we get satisfaction by our working, when we do something, and when we get satisfaction, then only we can get our true happiness. If we are satisfied by our work, what type of work, whether it is, and when we get satisfaction by it, we are happy eternally. Thank you. Thank you, sir. Mr. Satya sir, see, actually then satisfaction of work makes us happy. When you feel that I have done my responsibilities and duty properly, the happiness comes on our face. Anyone of my friends would like to speak? Anyone else? There is no language bar because NEP always says that never think that you have to speak in only singing. You can come here and speak in Hindi language also. You have to only express yourself. Don't hesitate that you have to speak in English. You are always welcome here. Please. Yes, sir. Yes, carry on. Actually, happiness is the stress-free mind. When our mind is stress-free, we feel happy. Satisfaction is an occasion which comes time to time. But stress-free mind is not an occasion. If it is always free, we are free of stress, we will automatically feel happy and we will enjoy the life. Thank you, sir. Actually, happiness is an emotion. I once have said, happiness is an emotion. And now I would like to ask Mr. Keshav, kindly explain what is Khushi, Prasannata, Anand according to you. What is Khushi? When do you feel happy? आप कब खुश महसूस करते हैं? आपके लिए खुशी क्या है? हमारे किसी
अंतर इच्छा की पूर्ति जब किसी वर्ग की हो जाए तो आत्मा से खुशी होती है कि आज मेरी कोई बहुत वर्षों से जो इच्छा अधूरी थी वह पूरी हो गई। तब अंतरात्मा से खुशी झलकती है कि मेरे अंदर आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बहुत वर्षों की जो आकांक्षा थी वह पूरी हुई आज। उस समय अंतरात्मा से खुशी झलकती है। कोई भी मनुष्य हो, अगर उसकी कोई भी इच्छा पूरी हो जाए जो बहुत वर्षों से उसके लिए अधूरा हो और अचानक से उसकी पूर्ति हो जाए तो उसके लिए उसकी बहुत पूरे दिन उसके लिए खुशहाली सी भी है। Thank you, sir. So our three friends said three different things regarding the happiness. First one, Sadhu said that the satisfaction of work makes us happy. Second, Hemantar said happiness is an emotion, we feel it. And third, Keshav sir, when our any kind of desire fulfills, then we feel happy. Now, so I can say these three are the different parts of happiness. By any other friend? What is happiness? Yes, sir. Answer please. Kindly pass the word. Yes, sir. Thank you. Thank you, sir. As I am thinking, Kindly, sir, please be a stand up. Your photograph will be recorded here. it's my pleasure, sir. Why not? As I am thinking, we have to categorize our work at least two parts. One side, some work are easy, some tough, and other side, some are rare and toughest. As my one of the colleagues, Mr. Keshav, just explained, yes, बरसों से जगी हुई कोई तमन्ना, कोई सोच, कोई इच्छा जब अचानक हेलो we are very fortunate that some of us are so active-minded, some of us so active. It means not we are not active, very active. We all are active, more than 100% active. So never try to take my words in other way. It's my own opinion. Whenever we read something which is rare, in rarest cases or conditions, on that time, if we have a keen desire that, oh my God, if I got success to achieve some kinds of rare problems, that will be very happiest moment in our life. And in a very short way, if I would like to explain the rarest work done in a very easy way, I think that is the very happiest moment for me. Thanks, sir. Thank you, sir. You told that happiness lies when we do any kind of rare work, and then we be very much happy. Now, Sushil sir. Yes, sir. I want to say that he said that healthy mind resides in a healthy body. So for healthy mind, happiness is also one of them. I think that happiness is the inner feeling of the mind. And if our mind is peaceful, if our mind is anxiety free, if our mind is tension free, then we automatically feel happiness. So our duty in the classroom is to make the classroom happy. Whenever we can make the student stress free, anxiety free and tension free. Thank you, sir. So, our five friends have told different opinions regarding the happiness. But I am very surprised that we are talking about the happiness and all the friends sitting here are very serious. Even we are explaining about the happiness with full seriousness. This is the very nice
nice contrast is being seen here. So I would like, Ramakant sir is very eager to explain something. So I hope you will explain all those things with a happy face. Kindly come. अपने जीवन में सबसे बड़ी बात है कि खुशी यानी कि हैप्पी जो है रहने के लिए जो है कि अपने जीवन में कभी भी जो काम हम लोग करते हैं वो सही काम करेंगे तो हमेशा खुशी मिलेगा। अगर गलत चुनाव अगर करते हैं तो हमेशा जो है इसका परिणाम गलत ही होगा। इसलिए जो है कि खुश रहने के लिए हैप्पी रहने के लिए हमको जो है हमेशा जो है कि हमें गलत चुनाव नहीं करना चाहिए, हमेशा सही चुनाव करना चाहिए, तब जाके हम लोग हमेशा जीवन में खुशी रहते हैं। थैंक यू सर। खुश रहने के गंभीर तरीके बताए आपने। दो और खुश मिजाज लोग हैं, पटेल सर आएंगे। कैन बी कम सर एंड प्लीज वेट, अदर माय फ्रेंड्स विल गेट चांस आफ्टर आई वर्क विद भोवन टू एक्सप्लेन दिस थिंग। कैन बी पटेल सर। यस सर, व्हाट इज हैप्पीनेस अकॉर्डिंग टू यू? As per my opinion, happiness is the moment of day-to-day life. It differs from man to man, working stage of different types of working style. As for example, if coach become happy in the playground when their training bird achieve the what the coach want. A teacher in teaching profession when become happy when his students become achieve or become stood first, outstanding in their field, in the working field of others like administrator, like a district magistrate, he became so happy when he discharged his duty. What is responsibility given to him towards the public, and at such a type of man-to-man happiness moment vary, and it becomes or makes a man happy when their works or their working style, their performance come up to the desire. Thank you, sir. So we have all got different types of feeling and happiness. Wait. Yes, cameraman, focus करो सर, happy चेहरे की ओर focus करो। सारे happy चेहरे इधर बैठे हुए हैं और happiness के बारे में हम लोगों ने जो बात की, ये happy चेहरे हैं यहाँ के आज के। चेक कीजिएगा कोई चेहरा दुखी का बिल्कुल नहीं है happy क्लासरूम में। Now we are a teacher sitting here for the training. Really, we are doing a very good job. A big clap for our cameraman. Please be clap. So now, very happy person in the world. Very happy man. My this friend feels very happy when he gets his breakfast before 7 in the morning. Then he becomes the happiest man of the world. Very happy. Now, we are here as a teacher working in a school, and we have a lot of responsibilities, and this is our pride duty that you have to make our classroom happy, not for us, but for all of the students who have come from different backgrounds and from different problems. A student comes late in the classroom, other comes before in the classroom,
Students have breakfast, another has no packet of lunch, he has not even brought a tiffin, his mother has not given his tiffin, he is hungry. These are the problems we face regularly, but the challenge is we have to make the classroom happy. How a hungry child sitting in your class become happy? How a tense child become happy in your classroom? How a puzzled and highly stressful teacher can make his classroom happy? A teacher is facing a lot of problems in his family affairs and economical affairs, and he has come in the classroom to make the classroom happy and take a smile on the faces of the students. How he will manage that his students will feel free and happy with him? This is the challenge of era. Not only for the teachers, but all the workers who are working in the different fields. So here are some strategies that how we can make our classroom happy without throwing any type of stoneful words to our words. Come here, my friends. Making classroom happy, one of the finest art including the habit of a good teacher. Making classroom happy is a habit. It does not become occasional. Whenever you enter in the classroom, your students must feel that this teacher will make us happy. We will feel happy and relaxed in this classroom. So a teacher is the role model of happiness for his students. Sometimes it happens that we are highly tense, we enter in the classroom, we have stressed faces. The teacher, a student watches regularly for 5 or 10 minutes of the face of the teacher, and he becomes tearful. He feels afraid. Oh, the teacher is in very tense mood, so I will not tell my any kind of problem. It also happens that we slap our students. How it happens? When we feel that we are not free, we have not ignored all the problems, we have not left all the problems before entering the class. So first, whenever we enter in the classroom, this is our prior duty to leave all kinds of stresses out before the classroom and then enter the classroom with a fresh face, with happiness, with a smile faces. Then your students will feel, my teacher is very happy. He will welcome you and then we will start your lesson. Your listener must feel that I am comfortable to the person who is orating towards me. If you will feel comfortable, then we will deliver. Then we will accept my words. And if you are in your problem, you are involved, your mind is involved in other kinds of problems, you are sitting here and mentally you are in your home or in your market and here are thinking about the different types of problems of house. So I will definitely not think all those things. So my friends, first, the teacher must be stress-free. The teacher must be happy. Then he will make his classroom happy. Second, you have to create such type of atmosphere in the classroom that your listener, your students feel that the lesson which will be taught by my teacher, that will be very wonderful and interesting. So being a teacher, this is our duty to make the task wonderful, interesting and fruitful. This is the second task. Never try to make your lesson very lengthy, very complicated. Because being a teacher, this is our task to make the complicated lessons very easy, student must be capable to understand easily. That should be very simple. The language must be simple. Now, the third. A good teacher is always looking to improve his classroom mind. And he works hard to try different strategies in order to find the ones that were best for him and his students. The strategy says, there is no compulsory that you have tried a single strategy and that will be successful. You have to try different kinds of strategies. It is possible that some might be unsuccessful and some of them will be successful. So you are being a mentor. You have to approach different kinds of aspects, different kinds of possibilities, different kinds of styles, different kinds of class, so that you can make your classroom happy. I would like to ask
any one of my friends, how many people gathered here are feeling happy today or they are not happy? Any moment today, you have got to be a smile on your face to be happy or not. It is afternoon today. In last 6 years, have you got any moment that you became a smile? You became happy? Any one of you? Yes? Kindly share. Share yourself. Last 6 hours. hours. In this school campus. Have you got any chance? Sir, for me, happiness is behaving myself, acting myself. Yes. I cannot be happy in a character which is not me. And for me, happiness is feeling confident and getting respect. और जहाँ तक लगता है कि बच्चों के आज जूनियर सेक्शन के क्लास में मेरी ड्यूटी थी, हमसे खुद लग रहा था कि बच्चे नहीं संभल पाएंगे क्योंकि छोटे बच्चे हैं। और अगर कोई पेरेंट ये आके कहता है कि आपकी वजह से मेरा बच्चा आज खुश है, दैट इज मोर हैप्पीनेस rather than कि आपकी वजह से, मतलब वो भी खुशी की बात है कि हाँ आपकी वजह से मेरा बच्चा टॉप कर गया, लेकिन ये ज़्यादा खुशी होगी अगर तुमको जब कोई पेरेंट आके कहता है कि आपकी वजह से मेरा बच्चा खुश रह रहा है, समय से खाना खा रहा है, मोबाइल कम चला रहा है, पेरेंट्स की बात सुन रहा है। तो चाहे हैप्पीनेस हो चाहे कोई भी इमोशन, वो गिव एंड टेक है, जितना हम उसको देंगे वो हमको उतना देगा। तो ये लास्ट 6 आवर में 1-2 टाइम ऐसा हुआ कि जब चूंकि लास्ट भी मेरी ड्यूटी उसी क्लास में थी, आज भी उसी क्लास में है, तो कोई बच्चा आके आज मुझसे बोला कि मैम आज फिर आप इसी क्लास में हैं, हमको बहुत अच्छा लगा, तो वो चीज़ अच्छा लगा। और आज लेट से हम आज नहीं, थोड़ा टाइम में आ गए, भी अच्छा लगा, लेट से घर से निकले और टाइमली स्कूल पहुंच गए, भी बहुत अच्छा लगा। There are 2 aspects of happiness. First, being a teacher, she enjoyed a lot when a guardian would make a compliment, a very nice compliment regarding her. And second, when she started late from her house and reached here on time. So they are, as a teacher, as a human being, they are the 2 aspects of happiness. Other kinds of aspects of happiness are also in our mind, and as a human being we feel regularly. Sometimes happens that we have never thought about such type of result it happens. Or here the different people are sitting, you have got therefore different names and they make us smile with their actions, their languages, their dialects and other things. So here are some of the sentences which will make that walk around the room. Being a teacher, you cannot sit alone on a bench, on a chair and watch the classroom. So moving in the classroom is a proper strategy, not for the happy classroom. But this is a strategy to make your classroom cool, calm and proper teaching, because moving around the classroom you will definitely see all the students, and the student will see that the teacher is moving and he will definitely come to you also. So he will properly do the work, either the classwork or homework you have given. Second, he will listen to all those things we are doing, they will ask any question to her. Second, whether your students are quietly working at their desks or are sitting with their center groups, walking around the room is so important. Keep them on their toes while circulating constantly around them. If you stay at your desk while kids are working independently, they will be more likely to get off task. यदि आप उनको कोई टास्क देंगे, अपने डेस्क पर और चेयर पे बैठ जाते हैं, तो शुरुआती 1 से 1.5 मिनट तो वे काम करेंगे, लेकिन उसके बाद वे सेल्फ सेंटर्ड नहीं रह जाएंगे, वो आपके टास्क को उतने मन से नहीं करेंगे और वे बस किसी दूसरे काम में लग जाएंगे और उनके काम करने की गति धीमी हो जाएगी। लेकिन यदि आप क्लासरूम में प्रॉपरली घूमेंगे तो सबको लगेगा कि नजर है टीचर की हमारे ऊपर, और वैसी स्थिति में वे आपके काम को ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तीसरा, working around the room and making your presence known will help you to become aware that you are there for them when they need it. अब ये सबसे बड़ा लाभ। Student is doing any sum given by you, and suddenly he feels any problem in the question. You are just moving and going to him.
always the students feel that teacher is just me and I can ask any kind of question to him related to sum. So this is our duty to make the student feel that his teacher is always with him. So he will ask a sudden questions and he will be happy to reply them. So these are the ways, these are the strategies to make your classroom happy. All of you have different kind of experiences when the students have asked different type of questions and they have made a smile on your face. Can any one of my friend will share his memory that you are very tense, you are suffering from any problem and your student had innocently asked a question to you and you felt very nice talk and you feel happy and that student has made your mind happy and then you made the classroom happy. Any one of my friends would like to share a happy moment in the classroom? Any of my friend, kindly share your happy moment in the classroom. Would you like to share? उस समय का वह क्षण जब किसी विद्यार्थी ने आपके चेहरे पर हंसी या मुस्कान ला दी और फिर आपका तमतमाया या नाराज या गुस्सा या तनाव में भरा हुआ चेहरा अचानक नॉर्मल हो गया हो और उसके बाद पूरा क्लासरूम आपने बड़े बेहतर तरीके से लिया हो, लेकिन इसके पहले सब्स्टिट्यूशन लग जाने की वजह से बहुत तनाव में 4-5 अच्छे प्रवचन देने के बाद वाक्यों में और फिर आप क्लासरूम के गेट तक गए, लेकिन आप बिल्कुल इसके लिए मेंटली तैयार होकर गए हैं कि आज नहीं पढ़ाऊंगा और आप पढ़ा के लौटे। ऐसा कैसे हुआ? क्या बच्चे ने माहौल बदल दिया या रास्ते में आपका माहौल बदल गया? तो बदलना नहीं है, तो जरूर किसी बच्चे ने कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से आपका वह जो सब्स्टिट्यूशन लेने का तनाव था अचानक आपसे दूर भाग गया और आपने बच्चों को कुछ बताना जरूरी समझा। कोई है मेरे दोस्त इस बात को शेयर करना चाहे जिनके साथ ऐसा हुआ हो? आपके साथ हुआ है नहीं? आपके साथ होता है? कोई और आपको मौका देंगे? हाँ मैडम आप बताएं। देखिए इधर दिनों को अभी बुलवा ले, 2 दिनों बाद त्योहार है तो कम मौका लगेगा। सर कुछ दिन पहले की बात है तो नहीं आ रही थी, मेरा सब्स्टिट्यूशन लगा था 7th क्लास में और उसमें मेरा सभी को सारे क्लासेस में नहीं जाना था, मैं जाना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं गई और वहाँ मैं जब पहुँची तो बच्चों ने कहा कि मैम हमारे पढ़ाई से तैयार नहीं आने के बाद रुकी नहीं और उनको क्वेश्चन आंसर भी नहीं पढ़ी और ये बातों में मुझे लगा कि जब क्लास में उसमें मैम आने का कोई टाइमिंग्स नहीं था, मुझे लगा कि नहीं इनको क्वेश्चन आंसर करवाना चाहिए। थैंक यू मैडम। अब मैं ये सवाल करूंगा आपसे, रूबी मैडम ने जो बताया वो मेरे 6 दोस्तों ने हैप्पीनेस का तरीका बताया। रूबी मैडम का यह काम उन 6 में से किस परिभाषा के अंतर्गत आता है जो इन्होंने किया? जो बच्चों को इन्होंने खुशी दी, मेरे 6 दोस्तों ने बताया कि हैप्पीनेस उनके लिए क्या है, उसमें से किस दोस्त ने जो बताया था उससे ये कंपेयर करता है, उससे ये कैरी करता है? ये सर मैंने क्या यस यू आर राइट, यू हैव हर्ड ऑफ इट। शत्रुघ्न सर ने सबसे पहले यही कहा था कि हम यदि अपने ड्यूटीज को प्रॉपरली पूरा कर लेते हैं और वह जो सेटिस्फैक्शन हमें मिलता है दैट इज द बिगेस्ट हैप्पीनेस। और रूबी मैडम ने यही किया, बच्चों की समस्या को सुन करके और वो एक क्लास उन्होंने कंडक्ट किया, उनके सिलेबस को आगे बढ़ाया। वो जो हैप्पीनेस था वो बच्चों के लिए भी था और इनका सेटिस्फैक्शन था। बोथ हैव क्रिएटेड ए हैप्पी क्लास। सो इनकी परिभाषा तो साबित हो गई, अब बाकी होगा। निर्भय जी आप ही बता दें आपके लिए वो मोमेंट। देखते हैं आप सबकी समय करता है। मैं सर 9th में था, 9th क्लास में गया था, तो उस दिन पता नहीं क्या पढ़ाने का मन नहीं था, तो मैं थोड़ा सा
बिल्कुल नहीं। गया क्लास में तो एक लड़के ने मुझसे एक सवाल किया कि सर एक सवाल करना है। मैं थोड़ा सवाल से बताता हूँ। तो मैंने कहा कि ठीक है, कैसा सवाल? तो सवाल सर विषयगत नहीं, अगर विषयगत सवाल होगा तो जवाब देंगे और दूसरे टाइप का सवाल होगा तो फिर क्लास में बंद होने के बाद। तो बोला कि नहीं सर, विषय से ही संबंधित है। उसने दो शब्द सर कहे, एक था अकलमंद। हाँ, कहा कि सर अकलमंद में भी मंद लगा हुआ है और मंद बुद्धि में भी मंद लगा हुआ है। ये दोनों में फर्क क्या? जब मंद दोनों में है तो एक को बुद्धिमान कहा जाता है और दूसरे को मूर्ख क्यों कहा जाता है? तो ये जो सवाल किया तो मेरी हंसी अचानक ही जो दिमाग में ऐसे घुसा हो, ये वाकया मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझको थोड़ी सी मतलब हंसी आई और मैंने उसको समझाया कि मंद एक, मैंने भी उसी लहजे में उसको समझाया कि मंद एक आगे लगा हुआ है और एक पीछे लगा हुआ है। तो पहले अकल के साथ जो है, अकल के बाद पहले अकल फिर बाद में मंद है, तो इसलिए वो अकलमंद है। और ये जो है ये बुद्धि के साथ पहले मंद लगा हुआ है, यानी कि पहले मंद है और बाद में बुद्धि है, इसलिए ये मूर्ख कहा जाता है। तो सभी बच्चे हंसने लगे और उसके बाद फिर मूर्ख हो गया पढ़ाने का और फिर मैंने पढ़ाया। फिर आपने अकलमंद की तरह पढ़ा दी। जी बहुत। तो बच्चे के एक सवाल ने अपने टीचर के मूड को बदला और फिर एक क्लास कंडक्ट किया। एक ऐसा टीचर जो किसी वजह से परेशान या थका या अस्वस्थ क्या बोलते हैं, अस्वस्थ क्या बोलते हैं, अस्वस्थ क्या आप बोले तो अस्वस्थ। तो शिक्षक जो अस्वस्थ महसूस कर रहे थे वो परस्थ हो गए, बच्चों के बस में चले गए और क्लास को कंडक्ट कराया। होता क्या है कि जब क्लासरूम कंडक्ट की बारी आती है, हम जब तनाव में खुद होंगे तो हम अपने क्लासरूम को कभी भी हैप्पी नहीं कर सकते। और मेरे सारे शिक्षक मित्रों ने खुशी की परिभाषा दी कि हमें खुशी किसमें मिलती है। कभी कभी एक उड़ती हुई तितली पकड़ लेने की जो खुशी होती है वो उस दिन की तमाम खुशियों पर भारी पड़ती है। एक गृहिणी के लिए कोई स्वादिष्ट खाना बना देना उस दिन की तमाम खुशियों पर भारी पड़ती है। एक बच्चे के लिए होमवर्क नहीं बनाना और टीचर से बच जाना उसकी सबसे बड़ी खुशी होती है। और हम छपरा में रहने वाले लोगों का पैंट और कपड़ों पर बिना एक भी छींट पड़े बारिश के बाद बज निकलना सड़कों से अजीब खुशी देता है। यह भी एक खुशी है। कहने का मतलब कि खुशी को कहीं से भी किसी भी रूप में कैटेगराइज नहीं किया जा सकता। वह कभी भी कहीं भी प्रकट हो सकती है। दूसरों के पैसे से यहाँ से निकल के गोलगप्पे खाने की जो खुशी होती है वो अद्भुत होती है, क्योंकि उसमें रोमांच आता है कि मैंने गोलगप्पे भी खाए, दूसरे को मूर्ख भी बनाया, इतना मजा आया। तो ये जो मजा ढूंढते हैं हम, ये खुशी, अब बस इसी खुशी को क्लासरूम में ट्रांसफर करते हैं। इसी हैप्पीनेस को क्लासरूम में ट्रांसफर करना है। अब ये ट्रांसफर कैसे होगा? आपके सामने। आस्क योर स्टूडेंट्स फॉर फीडबैक अबाउट एवरीथिंग यू डू। आप जो क्लासरूम में करते हैं कभी कभी उनसे फीडबैक लीजिए। उनको कैसा लगता है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, उसको एंजॉय करते हैं या आपके पढ़ाई की शैली से इतना टेंस रहते हैं कि आप पूरे 40 मिनट में एक बार भी उनको हंसने का मौका नहीं देते हैं, या उनको सिलेबस दिखा दिखा के आप डराते हैं रोज।
या कि कम समय में एग्जाम आने वाला इसका भौकाल बनाते हैं, या ये देते हैं कि अच्छा तो देख लेना एग्जाम में बता देंगे, ये करते हैं। आप क्या करते हैं? बच्चों की उमंगों को, बच्चों की भावनाओं को, उनके सीखने की ललक को आप क्रश करते हैं या कि उनको और पनपने का मौका देते हैं? ये फीडबैक आप उनसे जरूर लीजिए। Actually, happiness is the satisfaction of mind. Even if a thief steals your mobile, and in that situation he is happy, though he has done the bad work. So, in the same manner, if a teacher is capable of putting the heads of the students down on the desk, he is satisfied because he has got it done, and he is happy because this is the satisfaction of mind for him. Thank you, sir. Thank you very much. Next, when you give a lesson, ask for feedback to find out if they understood the new concept. You have to invent different kinds of concept. That is called teaching style. I am just putting here a poem. All of you have definitely learned. चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में बुझा जाऊं, सबने कविता पढ़ी है। 3 अनुच्छेद की बड़ी साधारण शब्दों वाली कविता है। आप जब विद्यार्थी थे और आपने इस कविता को पढ़ा था, और अब आप उस कविता को पढ़ें, हर है दोनों को पढ़ने में, दोनों के समझने में, दोनों के अर्थ में। उस समय शिक्षक ने आपको जो बताया कि राष्ट्रप्रेम की कविता है, इसको पढ़ जाना है, आपने याद कर लिया। आज जब उस कविता को पढ़ते हैं तो उसको आप महसूस करते हैं कि 3 अनुच्छेद में कितनी बड़ी बात कह दी गई। जिस पथ जाए भी रहे, मुझे तोड़ देना, बनमाली देना, उस पथ पर तुम थे। यह जो उत्सर्ग है, ये कितनी बड़ी बात है। जब आप इसको पढ़ते हैं तो आज आपको वाकई, आज आप में राष्ट्रप्रेम की भावना जागृत होती है, उस समय नहीं हो रही थी। लेकिन आज आप न केवल जागृत करते हैं, अपने क्लासरूम में उसको कोर करते हैं। यही हैप्पी क्लासरूम है कि अब क्योंकि आप एक टीचर हो गए हैं, तो एक टीचर के नाते उसके कहते हैं ना कि पोएट्री खास करके लिटरेचर टीचिंग में जो है ओरिजिनल फ्लेवर को लीजिए। आप यदि शब्दों के फ्लेवर को नहीं ले रहे हैं, शब्दों के गंध को नहीं महसूस कर रहे हैं, तो फिर गंधहीन क्लास आपका हो जाएगा। इसका मतलब हुआ सर कि खुशी जो है वो अस्थायी है और प्रसन्नता जो है वो अस्थायी है। तो भाववाचक संज्ञा है ही को जी, वो भाववाचक संज्ञा है, आप में है। एक जगह बताते हैं, संस्कृत में पढ़ाया जाता है, रस जो बताई जाती है, रसों की उत्पत्ति बताई जाती है, स्थायी भाव। तो हिंदी वाले लोग बता रहे हैं स्थायी भाव है। तो रसों की उत्पत्ति आखिर होती कैसे है, तो उसको सरल भाषा में बताते हैं कि हर आदमी के मन में तमाम रस हैं, 9 और 10 दो धाराएं उत्पत्ति। हाँ, तो जैसे अभी आप जिस मुद्रा में हैं, आप बड़े शांत और हंसने की मुद्रा में हैं। यदि मैं कोई ऐसी कथा सुनाऊं जिसमें आपके चेहरे पर दुख आ जाए, करुण रस हो जाएगा। मैं आपको कोई ऐसी बात बताऊं जिसमें आपको ऐसे शब्द आए जिसमें कि आपको जुगुप्सा होगी, घृणा टाइप का होने लगे, नफरत टाइप का होने लगे। कोई और भाव होगा, कभी शोक का भाव आएगा, कभी हंसी का भाव आएगा, कभी दुख का, कभी वैर का, ये अलग अलग भाव आएंगे। इसको बताने के लिए कवि ने लिखा कि जैसे हम हांडी में कोई पानी गर्म करने के लिए रखते हैं, तो जब चूल्हे पर वो हांडी रखी जाती है और जब वो पानी रखा जाता है तो पानी बिल्कुल शांत अवस्था में होता है अवस्था। लेकिन जैसे जैसे ताप बढ़ता है और जैसे जैसे समय बीतता है, वैसे वैसे पानी के उबलने के पहले जो कई सारी प्रक्रियाएं होती हैं। आपने पानी को उबलते देखा होगा, पानी का हल्का गर्म होना, छोटे छोटे बुलबुले आना और उसके सतह पर तैरना, फिर थोड़े बड़े बुलबुले आना और अंत में बड़े बड़े बुलबुले आना। लेकिन फिर चूल्हा को ऑफ करके पानी को वैसे ही छोड़ दीजिए, पानी का फिर उसी तरह शांत हो जाए। बिल्कुल रस आदमी के मन में वैसे ही छिपे बैठे हैं, अलग अलग मौकों पर अलग अलग भावनाओं के ताप पाकर वे प्रकट होते हैं और फिर वे अपने मूल भाव को प्राप्त कर लेते हैं, फिर वो शांत। तो खुशी जो है, आप क्लासरूम टीचिंग में जो खुशी दे रहे हैं वो क्षणिक तो है, लेकिन कुछ
अस्थायी भी होते हैं। स्थायी कब होते हैं? जब वह टीचर आपके द्वारा बताई गई विधि, आपकी सुनाई हुई कथा जाकर अपने घर पर अपने माँ पिता से और अपने दोस्तों से जब उसको भागीदार बनाता है, शेयर करता है, तो वो जो खुशी आपने दी है, आज क्लास में बड़ा मजा है, सब ने ये सुना है। रोहित ने अपने क्लास में 5-6 दिनों पहले एग्जाम शुरू होने के पहले सौर मंडल के बारे में पढ़ाया, क्लास 4, और अगले 4 दिनों तक बच्चे कहते रहे कि मजा आ गया, सौर मंडल पूरा समझ गया। तो ये जो खुशी थी, जो उनकी मेमोरी थी, वो सौर मंडल पर आकर टिकी हुई थी, और ये तब तक टिकी रहेगी जब तक या तो वे या फिर कोई दूसरे टीचर उस पर नया पेंट नहीं लगाए, तब तक उनके लिए वो सबसे बड़ी खुशी। क्योंकि उस दिन उन्होंने ना केवल पाठ पढ़ा, पाठ को समझा और बहुत हल्के मन से, बहुत साधारण मन से बहुत बड़ी चीजों को समझा। तो एक शिक्षक का ये दायित्व है कि अपने पाठ को बोझिल नहीं बनाए, बहुत साधारण, बहुत सरल तरीके से। बच्चों से फीडबैक लेने का क्या मतलब है? क्लासरूम के कोने में बैठा हुआ कोई बच्चा यदि आपके क्लासरूम में गंभीर है और आप चुटकुला सुना रहे हैं, क्लास में हल्की बातें कर रहे हैं और वो गंभीर है, इसका मतलब कि मेरी बात उसको नहीं छू रही है, मेरी बात उस तक नहीं पहुंच रही है। वजह दो है, या तो वो समझ नहीं पा रहा है या फिर वो मेंटली यहाँ नहीं है। तो हमारा दायित्व बनता है कि हम जाकर उससे फीडबैक लें, मैं तुम तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा, मेरी बात तुम पर असर क्यों नहीं डाल रही, ये तो बहुत जरूरी है जानना। तब हम जब सारे बच्चों के मेंटल स्टेटस को अपने मेंटल स्टेटस से जोड़ के कुछ डिलीवर करेंगे तो वो क्लासरूम हैप्पी होगा। आगे, when you are assigning a new project, ask for feedback to make sure they know what is expected of them. आप प्रोजेक्ट दे रहे हैं, प्रोजेक्ट आ भी रहा, आप चेक भी कर। अमूमन ये देखा जाता है कि हम बच्चों को जो पढ़ाते हैं, जो लिखवाते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि बच्चा अक्षरशः वही दोहराए, वही आंसर शीट में लिखे। आप बताएं क्या यह जायज है कि हमने जो बोर्ड वर्क किया, किसी क्वेश्चन का आंसर किया, बच्चे ने वो आंसर नहीं किया, उसने अपने मन से कुछ लिख दिया, हम उसको अप्रिशिएट करेंगे या नहीं? एज ए टीचर हम करेंगे, क्योंकि हमारा काम यही है कि हम उसकी प्रतिभा को बाहर लाएं, ना कि अपनी प्रतिभा से उसको दबाएं। हमने एक वे बताया, हमने कुछ शब्द बताए, उन शब्दों से मिलते जुलते शब्दों का सहारा लेकर एक दूसरे को उत्तर तैयार कर दिया, और यदि तथ्यगत गलतियां उसमें नहीं है, वो हम उसको इंस्पायर करेंगे कि तो ऐसे और उत्तर लिखो, तो ऐसे और उत्तर लिखो, ताकि वो लिखना सीख जाए, ना कि मेरा वाला लिखना मतलब अपने शब्दों को उस पर थोप देना। तो उधार के शब्दों को लेकर कितने दिन वो चल पाएगा? उसके अपने शब्द तो है ही नहीं, मेरे शब्द हैं। तो हमारा ये दायित्व है कि उसके शब्दों को हम विकसित करें, और ये तब होगा जब हम उससे फीडबैक मिलेंगे कि क्या तुम खुद लिख सकते हो, क्या तुम मैंने क्लासरूम में जो बताया तुम इसको अपनी भाषा में लिख सकते हो। तब आप क्लासरूम को बच्चों के मुताबिक बना पाएंगे, लिसनर के मुताबिक बना पाएंगे। यदि आपका लिसनर आपकी ओर आकर्षित नहीं है तो आप चाहे कितनी भी अच्छी बातें बोले, कितनी भी गंभीर, कितनी भी ज्ञान की बातें बोले, लेकिन लिसनर यदि नहीं है उत्सुक आपकी बात सुनने के लिए, तो वह जाया, वह बेकार है। तो एक अच्छे टीचर का दायित्व है कि क्लासरूम में हैप्पी बनाने के लिए क्लासरूम के एटमॉस्फियर को क्रिएट करें और फिर अपने को डिलीवर करें। 45 मिनट्स की क्लास यदि होते हैं स्टैंडर्ड टाइम में, तो 5 मिनट तो आपका एटमॉस्फेयर क्रिएट करने में तो लग ही जाता है, और अगले 30-35 मिनट जो आपने स्ट्रेस दिया है, एक अच्छे टीचर का ये दायित्व है जो अपना स्ट्रेस अपने ही क्लास में निकाले, ना कि वो स्ट्रेस छोड़ जाए मैं जाके निकालूं। तो लास्ट 5 मिनट्स में बच्चों को आप रिलैक्स करके तो आइए कि अगले क्लास में वो प्रिपेयर भी हो जाए। लेकिन आपने बेल लगने तक उसको लेसन दिया, उस समय तक उसको पढ़ाया,
और उसके बाद कोई गंभीर टीचर चले गए और जाते ही उन्होंने शुरुआत कर दी, तो बच्चे को आपने 1 मिनट का भी ब्रेक नहीं दिया रिलैक्स होने का, तो फिर वो कैसे कैटर करेगा आपने डिलीवर किया है। तो फर्स्ट 5 मिनट्स और लास्ट 5 मिनट्स कम से कम अपने क्लासरूम को तो हैप्पी बनाइए। खास करके वे लोग जो साइंस जैसे सीरियस सब्जेक्ट करते हैं, सोशल साइंस करते हैं, मैथमेटिक्स करते हैं, जिनके पास समय कम है, सिलेबस बड़ा है, लेकिन उनकी भी ड्यूटी है कि वो क्लासरूम को स्ट्रेस फ्री रखें। तो उनको कुछ ना कुछ तो उस तरह का करना पड़ेगा कि बच्चे उनको समझे। 45 मिनट्स आपने कंटिन्यू डिलीवर किया और आप अगले दिन जाकर पूछ रहे हैं क्लास के 4-5 मिनट ही बता रहे हैं, बाकी नहीं बता पा रहे, तो सेल्फ इवैल्यूएशन यहाँ काम शुरू करता है। उनका नहीं बताना आपका फीडबैक कि आपने 45 मिनट डिलीवर किया, वो 5वां की बोलने की स्थिति में नहीं है। इसका मतलब क्या है? 45 मिनट के आपके लेक्चर, आपकी मेहनत कहाँ है? कहीं ना कहीं आप मत बोले 45 मिनट, 30 ही मिनट बोले और दूसरे से 10 मिनट बोलवा, आप सफल हो गए अपने अभियान, आपका काम पूरा हो। आपको कोई जरूरत नहीं पता, आप भी रिलैक्स रहिए, क्लासरूम को रिलैक्स रहने दीजिए। एज ए ह्यूमन बीइंग आप जब किसी ओकेजन पे खुद को एक्सप्रेस करते हैं तो क्लासरूम में क्लासरूम के मुताबिक तो एक्सप्रेस कर ही सकते हैं। कुछ जो इनोवेटिव आइडियाज हैं उनको क्लासरूम में अप्लाई कर सकते हैं, बच्चों को खुशहाल कर सकते हैं। हालांकि कहीं पढ़े थे एक स्कूल के बारे में कि अमूमन टीचर आजकल क्लासरूम में मोबाइल का इस्तेमाल बच्चों के बीच में भी करते रहे हैं और उस पर सीबीएसई के कोऑर्डिनेटर का एक बयान दिया है कि जब से आफ्टर कोविड जो है मोबाइल तो कंपलसरी हो ही गया है टीचर्स के लिए भी, बच्चों के लिए भी, लेकिन क्लासरूम में यदि कोई टीचर मोबाइल का उपयोग करता है बच्चों को रिझाने के लिए, बच्चों को चुप कराने के लिए या बच्चों को समझाने के लिए, तो इसका मतलब है कि वह टीचर अपने विषय वस्तु के प्रति गंभीर नहीं है। कहने का उसका भाव बाद में था कि वह टीचर अक्षम है 40 मिनट क्लासरूम में खड़ा होने के लिए, इसलिए उसे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या टूल्स की जरूरत पड़ रही है। जबकि वो खुद हाथ मांस का पुतला है, उसमें सारे इमोशंस भरे पड़े हैं और वो एक इंस्ट्रूमेंट का सहारा, एक गैजेट का सहारा ले रहा है इमोशंस शो करने या इमोशंस कंट्रोल करने। तो वहां ये बात होनी चाहिए कि हम कैसे अपने बच्चे को खुशहाल बनाएं, कैसे अपने बच्चे के टैलेंट्स को मैक्सिमम हम बाहर करें। नेक्स्ट व्हाइट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हैप्पी क्लास में। इसके लिए ही नहीं, बीइंग ए हैप्पी मैन, इसके लिए never underestimate the power of praise. Kids love to be told that they are awesome. Do it as often as you can. Do it often as you can का मतलब क्या? 7 मिनट आपके क्लास में चलते हैं, 2 टीचर बहुत गंभीर हैं और प्रेस वर्दी नहीं है या प्रेस करने के मामले में थोड़े कंफ्यूज हैं, तो 5 पीरियड तो उनको ब्रेक मिलना ही चाहिए। प्रशंसा की ताकत बड़ी अच्छी है। आप जो काम कठोरता से नहीं करा सकते वह आप प्रशंसा से लगभग हर काम करा सकते। लोहे को लोहे से ही काटा जाता है, लेकिन बीच में मुलायम पानी की भी जरूरत पड़ती है, जाते रहते तभी वो कटता है, वरना नहीं कटता। तो मुलायमियत तो चाहिए, कोमलता चाहिए, तरलता चाहिए, और वह तभी संभव है जब आप अपने बच्चे को प्रेज करें। 1 वाक्य के लिए करें, 2 वाक्य के लिए करें, 5 वाक्य के लिए करें या 1 शब्द के लिए करें। प्रशंसा तो एक दवा है। वह यदि आप उसको रोज इस दवा की घुट्टी पिला रहे हैं, रोज वह घुट्टी पिला रहे हैं, तो समझिए कि आप जो चाहते हैं वही वह बन के निकलेगा। और यदि आप रोजाना उसको कड़वी बातें सुना रहे, तुमसे नहीं होगा, तुमसे कभी नहीं होगा, तुम कर ही नहीं सकते, तुम सक्षम ही नहीं हो, तो अंत में कहेगा जब कुछ कर ही नहीं सकते तो फिर मैं प्रयास ही करूं। लेकिन यदि आप ये कहते हैं कि तुम प्रयास करो, होगा, अभी थोड़ा कम हुआ है, कल और ज्यादा होगा, इससे ज्यादा परसों होगा, इससे भी ज्यादा अगली बार होगा, तो 30वें दिन देखना कितना कमाल होगा।
तो वो करेगा। बच्चों को हम लोग छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, इंग्लिश के टीचर उनको स्पेलिंग याद करने के लिए देते हैं। आप उनको पहले दिन आपने 20 स्पेलिंग याद करने को दे दिया और अगले दिन उससे सुनना चाहते हैं, जानती है कि नहीं है। और यदि एक दिन में आप 20 दे रहे हैं तो क्या चाहते हैं? आपने 1 महीना में 600 नए शब्दों को सिखाने का टारगेट करना है। अरे आपने 1 महीना में 50 नए शब्द यदि सिखा दिए तो 12 महीना में आपने 600 सिखा दिया और 600 शब्द सीख लेने पर जिंदगी निकल जाएगी। आप ये क्यों नहीं सोचते? तो आप 2 शब्दों का टारगेट लेके क्यों नहीं करते कि आपने क्लास में मैं 2 ही शब्द नया सिखाऊंगा, 2 से ज्यादा दूंगा ही नहीं, सारे तो याद करके आएंगे और अगले दिन 2 पर वो 4 हो जाएगा, अगले दिन वो 6 होगा। सप्ताह बीतते बीतते 12 शब्दों का कलेक्शन है जो नए हैं, पुराने उसके पास पहले से भरे पड़े। तो लक्ष्य को हमेशा रीचेबल रखना चाहिए। लक्ष्य रीचेबल हो तो पाने में आसानी होती है। और लक्ष्य पहले ही बड़ा निर्धारित कर दिया, छलांग लंबी लगाने की सोचने लगे तो मुश्किल तो आएगी। तो बच्चे के चेहरे पर मुस्कान देखना है तो उसे छोटे लक्ष्य और उसको खुश रखने के लिए उसकी प्रशंसा करें। कभी कभी यदि किसी को बेहतर बनाने के लिए झूठी प्रशंसा भी करनी पड़े तो करनी चाहिए। ये नीति कहती है, ये सिद्धांत कहता है कि यदि किसी को बेहतर बनाना है तो उसकी झूठी प्रशंसा भी करे और उसका परिणाम, उस पर नजर बनाए रखने की उसका परिणाम हो कैसा रहा। हो सकता है कि 7वें 8वें 10वें दिन तक आते आते थोड़ा धैर्य बनाए रखने की जरूरत पड़ती है। 10-15 दिनों बाद सकारात्मक परिणाम आना शुरू हो जाता है, लेकिन बिखरे नहीं क्लास। बच्चे की प्रशंसा जरूर करें, वह आपसे प्रशंसा की उम्मीद करता है। जब कोई नई पेंटिंग बनाता है, जब कोई नई कॉपी पर नए कलम से अपना नाम लिखता है तो भी वो उम्मीद करता है, एक कवर लगाता है तो भी उम्मीद करता है, उस कवर पे अपना नेम लिस्ट लगाता है तो भी उम्मीद करता है कि आप ये वाह बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से तुमने लिखा है। और इतना ही कहना उसके लिए खुशी देती है तो अगले कॉपी में भी वो कवर लगा लेता है। मैंने दूसरे में भी लगा दिया और तब आप कहते हैं, मैसेज देते हैं वेरी स्लाइटली, सब में लगा लो तो कितना अच्छा लगेगा और फिर वो सब में लगा लेगा। लेकिन यदि पहले ही दिन आपने कह दिया कि समय की बर्बादी है, घर पर तुमको कोई काम नहीं है, यही सब करते रहते हो, कवर लगाते हो, कवर फाड़ते हो, तो हताश हो जाए और फिर उसके सारे कॉपी और किताबें ऐसे ही रह जाएंगे क्योंकि वो आपसे वो कवर वाला बुक दिखाने से डरने लगेगा कि कवर से ये भी रखते हैं, कवर वाला बुक बिल्कुल नहीं। बेसिकली एक श्लोक है संस्कृत, वो बताता है कविता करते कैसे और कविता का संदेश पहुंचता कैसे। तो वो मोहम्मद एक बड़े विद्वान है संस्कृत काव्य शास्त्री, उन्होंने लिखा है कि काव्य में यशसे अर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेतर क्षदय सत्य पर निवृत्त कांता समित उपदेश लिखे। ये कविता आखिर क्यों लिखे उन्होंने बताया है। काव्य में यशसे, कविता यश पाने के लिए लोग करते हैं, काव्य शास्त्र की रचना करते हैं या साहित्य की रचना करते हैं। कुछ शिक्षक इनको अनुभव है, सर हमको रख लीजिए, कुछ मत दीजिएगा, लेकिन हमको रख लीजिए। स्कूलों में ऐसे भी शिक्षक आते हैं जो कहते हैं हमको रख लीजिए, बस कुछ मत दीजिए, खाली हमको पढ़ाने की इच्छा है, बच्चों को हम पढ़ाना चाहते हैं, जो हम पाए हैं सो देना चाहते हैं। वो यशसे वाले लोग हैं, हमको यश मिलेगा, बाकी हमको कुछ नहीं चाहिए। हमने पढ़ाया, बच्चा ने नाम किया, मेरा भी नाम साथ में हो गया। दूसरे हैं अर्थकृत, सर हमको सर हाँ तो आप आए डेमो के लिए आए, एक सप्ताह बाद ठीक है सर, ठीक है सर, जरूर सर। और जैसे ही वे बाहर निकले रिसेप्शन पे, यहाँ कितना मिलता है, यहाँ कितना मिलता है, ये अर्थकृत्य वाले लोग हैं, उनको करना है लेकिन अर्थ भी उनकी प्राथमिकता में है। कई सारे ऐसे कवि हैं जो कविताएं करते हैं, बदले में अर्थ कमाते हैं, धन कमाते हैं। तीसरा पाठ व्यवहार विदे, व्यवहार के ज्ञान के लिए भी कविता की जाती है। आप रामचरितमानस को पढ़ लीजिए, किसके साथ किसका व्यवहार कैसा होना चाहिए वो उस ग्रंथ में बताया गया है। भाई का भाई के साथ, भाई का पिता के साथ, बेटे का माता के साथ, जो
सारा व्यवहार पति का पत्नी के साथ सब कुछ उसमें बताया गया। व्यवहार के लिए भी साहित्य रचना की जाती है। शिवेतर रक्षतय, शिव से इतर की रक्षा के लिए, शिव माने कल्याण, शिव से इतर माने अकल्याण अशुभ, और रक्षतय माने रक्षा। अशुभ या अकल्याण से रक्षा के लिए भी साहित्य की रचना की जाती है। आप सुबह में कोई स्तोत्र पाठ, कोई भजन पाठ, कोई चालीसा पाठ कुछ करके आते हैं या करते हैं, अपने अमंगल के नाश के लिए करते हैं कि हम पर जो अमंगल है उसका नाश हो जाए। और अंतिम भाग सत्य फल निवृत्तय, तुरंत आनंद की प्राप्ति के लिए आप कुछ साहित्य पढ़ते हैं और अचानक आपके मुंह से वाह, आपने कोई प्लान नहीं किया है कि निर्भय नीर के कविता की 8वीं पंक्ति पर वाह कहेंगे, उन्होंने पंक्ति पढ़ी और आपने वाह तुरंत वह दिया और फिर आप चुप हो गए। तो वो जो वाह निकला स्पॉन्टेनियस है, वो खुद ही आया है, बिना किसी योजना के, बिना किसी प्लानिंग के। यह है सद्य पर निवृत्ति, तुरंत आनंद की प्राप्ति। और कांता सम्मित उपदेश, कांता कहते हैं नारी को, नारियां भी उपदेश देती हैं। वे जब आप उनसे बात करते हैं और आप उनके बातों में पूरी तरह निबद्ध हो जाते हैं, और निबद्ध होने के बाद वे अपना संदेश आपको सुनाते हैं, ऐसा करना है, और आप ऐसा करने को तैयार भी हो जाते हैं। शिक्षक की भूमिका वही सत्य पर निवृत्ति और कांता सम्मित उपदेश की है। जब एक शिक्षक अपने क्लास में कोई चुटकुला सुनाता है, कोई कथा सुनाता है, या फिर कोई हंसी मजाक वाली बात सुनाता है, और जब पूरा क्लास हंसने के मूड में होता है या ठहाके लगा रहा होता है, तो टीचर आहिस्ते से कहता है, सारे लड़के यदि होमवर्क बना के कल आ गए तो इससे भी बेहतरीन कहानी सुनाऊंगा। आहिस्ते से वो अपना संदेश वहां पर दे देता है, और लड़कों की बाध्यता हो जाती है कि यदि कहानी सुननी है तो होमवर्क बनाना है। तो इसके लिए किसी अलग से उसी वो उपदेश जो आपने दिया, एक हंसते हुए क्लास को दिया, इसके लिए ना आप गंभीर हुए, ना क्लास गंभीर हुआ, और उसने आपके आदेश को या आपके टास्क को बड़ा हंसते हुए स्वीकार भी कर दिया, और वो तैयार है आपके टास्क को देने के लिए, चाहे आपने कितना भी कठिन टास्क। तो वह जो उपदेश है उसकी कोशिश क्लासरूम को हैप्पी बनाने के लिए करनी चाहिए। आगे है most of the class will want the same kind of attention and will work toward it. Most of the class. हमें दोष है, एक टीचर के रूप में हम ये कह सकते हैं कि हम कहीं ना कहीं, कभी ना कभी पार्शियल हो जाते होते हैं कि नहीं, आपको पता है? मेरे कोई दोस्त पता है क्या हम पार्शियल होते हैं अपने क्लास में? हम अपने क्लास में आप में से है तो पार्शियल नहीं हुआ हो, या हम हो जाते हैं? क्या सच है? हम पार्शियल होते हैं, किसी खास बच्चे पर हमारा स्नेह बढ़ जाता है और किसी के प्रति हमारा स्नेह उतना नहीं रहता, बिना जाने अनजाने भी ऐसा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? जब क्लास में कोई बच्चा बड़े शांत भाव से आपकी बातों को गंभीरता से सुनता है, सारी क्लास ईमानदारी से करता है और हमारा स्नेह उसके प्रति बढ़ जाता है। ये ह्यूमन नेचर है, यह आदमी की कमजोरी है, इसको दूर नहीं किया जा सकता, लेकिन सब पे नजर तो बनाई रखी जा सकती है। यदि कोई बच्चा क्लास में ज्यादा टेंशन लेकर, यदि किसी ने अपने घर के तमाम खिड़की दरवाजों को खोल के धूप की रोशनी ज्यादा ले ली है, सूरज की रोशनी ज्यादा ले ली है, और किसी के मात्र इतनी बड़ी खिड़की से रोशनी आती है, तो रोशनी आने का रास्ता बनाए रखना चाहिए। हर कमरे को लगे कि रोशनी हमें आती है, हमारा बगीचा छोटा है, हमारी खिड़की छोटी है तो हमें रोशनी कम आ रही है, उनकी खिड़कियां बड़ी हैं, उनमें रोशनी ज्यादा आ रही है, लेकिन रोशनी देने वाले ने भेदभाव नहीं किया है, वो सबको रोशनी दे रहा है, लेने वाले ने ही खिड़की छोटी है। ये एहसास कराते रहना चाहिए।
एक शिक्षक का ये बड़ा दायित्व है कि पूरे क्लास को सम भाव से, बराबर भाव से देखे और हर बच्चों को एहसास हो कि टीचर हमको ज्यादा स्नेह देता है, टीचर हम ही को मानता है। ये एक शिक्षक का सबसे बड़ा कौशल है, यही उसका स्किल है कि हर बच्चा उसको पसंद करे। हर बच्चा कहे कि नहीं मुझ पर तो ध्यान देते हैं, वो कहे मुझ पर भी देते हैं, हम पर भी देते हैं, तो ये नहीं कहे कि नहीं हमको तो बड़ा उपेक्षा भाव से, ऐसा नहीं है। क्योंकि एक पिता अपने पुत्र को समान नजरों से देखता है, वैसे एक शिक्षक भी अपने बच्चों को समान नजरों से देख सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे तत्व हैं जिनके द्वारा हम क्लासरूम को हैप्पी बना सकते हैं। अब 1 मिनट के लिए अपने किसी दोस्त का फीडबैक चाहेंगे, सिंगल मिनट, एनीवन काइंडली कम, और जस्ट 1 मिनट, एनीवन ऑफ यू, that will be the last words by the teachers. Please, for 1 minute. Anyone? Feedback. Yeah. Yes, feedback of the class. Any one of my friends, please come. We are just approaching 1 hour. We have only 2 or 3 minutes. Just please come. Yes. आज के इन हाउस ट्रेनिंग में सर ने हम लोगों को बहुत ही खूबसूरती से ये बताया कि हम अपने क्लासरूम को हैप्पी कैसे रख सकते हैं, बच्चों के बीच में रह के एक खुशनुमा माहौल में उनको कैसे शिक्षित कर सकते हैं या कैसे शिक्षा दे सकते हैं। सर ने जितने तरीके बताए, बच्चों का फीडबैक लेना चाहिए, उनको हंसने बोलने का मौका देना चाहिए, उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, तो ये सारे तरीके अपना करके हम अपने क्लासरूम को हैप्पी बना सकते हैं, खुशनुमा बना सकते हैं। और सर का जो ये ट्रेनिंग सेशन रहा हम लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक रहा, फलदायक रहा। आगे इन